कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूँ जो बोली। दोस्तों, अभी अभी आपने जो गजल सुना उसे हमारे रिक्वेस्ट पर गाया है सुप्रसिद्ध चित्रकार लेकिन अनट्रेंड सिंगर श्री संजय भट्टाचार्य ने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यक्षिणी। आपका स्वागत है कला अध्यात्म के आज के इस कार्यक्रम में। आज आपका परिचय करवाते हैं दिल्ली के एक समकालीन कलाकार से जिनका नाम है संजय भट्टाचार्य। ये बंगाल में जन्मे, कोलकाता आर्ट कॉलेज से कला स्नातक हैं। कोलकाता आर्ट कॉलेज के शिक्षकों जैसे विकास भट्टाचार्य से वाटर कलर के बारीकियों को सीखा है। संजय की कर्मभूमि दिल्ली है। आपको बता दें कि संजय ने भारत ही नहीं, विदेशों में भी अपनी रियलिस्टिक वाटर कलर से अनूठी पहचान बनाई। इनके बनाए हुए भारत के 2 राष्ट्रपतियों के रियलिस्टिक पोर्ट्रेट भी राष्ट्रपति भवन में लगा हुआ है। एक लंबे समय तक अपने रियलिस्टिक पेंटिंग के लिए मशहूर चित्रकार श्री भट्टाचार्य ने एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स के साथ एक नया प्रयोग किया है जो अपने आप में अद्भुत है। इनके चित्रों में डार्क बोल्ड कलर, सिंपलिस्टिक ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, परिपक्व कंपोजिशन दर्शकों को अपने ओर आकर्षित करती हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपसे एक नम्र निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर हमारा उत्साह बढ़ाएं। दोस्तों, कलाकार से मिलने से पहले सुनते हैं उनके दर्शक क्या कहते हैं उनके पेंटिंग के बारे में। It's incredible how the great artist Bhattacharya ji has brought this new images in front of us and presented us, bringing us a new impulse in our minds and in our thoughts. It is really true that in nature all forms are geometry, and that form also has a very strong inner emotion that awakens in the human being. And that also has to do with the vowels which we speak. The vowels are also 5 main geometrical figures with an angle. What is an angle? With a point, a straight line, a circle, and parallel lines. And within these 5, we have a very important inner space of geometry in all our emotions. Sanjay's work is to me very often mysterious, but more often than that, he surprises me by the turns and turnabouts that he takes. I think that's the magic of Sanjay. On one day, he paints a completely realistic tribute to a fallen leader. On another day, he paints an amazing bit of landscape. On a third day, he paints geometric designs. What more can we expect from an artist? The sheer ability to continue experimenting has defined Sanjay's work throughout his life. Of course, Sanjay also writes, he's a poet, he's a singer, he does a lot of things, he's acted, he keeps doing all kinds of fun things. He lives a completely magical and fulfilled life. I kind of always turn up at Sanjay's exhibitions whenever I can, because they open up windows to my mind. Thank you. We are from Delhi, and we have a gallery by the name of Gallery Navya in Delhi in couple of locations, and we are happy to have brought this exhibition of Sanjay Bhattacharya's this recent series of works, which are meaning they are beautiful and they are substantial, they are mysterious, and yet they are visible as what they are. So it's up to the viewer to decide and decipher them
abstract art, as anybody who knows it, knows that it's an enigma, it is mysterious, it is something which keeps you guessing at all times, and each time you see the work, you'll find something very, very different and very, what should I say, something which you hadn't discovered before. So it's like a new discovery every day. The gallery has a major presence in Delhi, Gallery Navya, and this is probably the second time we have shown in the city of Mumbai at Jahangir Art Gallery. कला अध्यात्म के लिए चित्रकार संजय भट्टाचार्य से बातचीत की है एम के राही ने। तो आइए मिलते हैं संजय भट्टाचार्य से। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आज हम आपको मिलवाते हैं देश के एक बड़े चर्चित चित्रकार जिन्होंने रियलिस्टिक पेंटिंग के माध्यम से अपने एक अलग ही मुकाम बनाया है इस देश में। तो आज हम मिलते हैं देश के एक चर्चित चित्रकार श्री संजय भट्टाचार्य से। आइए दादा। दादा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संजय भट्टाचार्य। मैं एक प्रोफेशनल पेंटर हूँ। 1982 में मैं कलकत्ता की गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से पास किया। उसके बाद मैं दिल्ली चला आया हूँ। शुरुआत में 5 साल मैं पेंटिंग नहीं कर पाया। मैं कमर्शियल काम करते थे क्योंकि पैसा वैसा नहीं था मेरे पास। उसके बाद 87 ऑनवर्ड्स अगेन आई स्टार्टेड डूइंग पेंटिंग्स, और इस जरिए बहुत एग्जीबिशंस भी किया है मैंने। इंडिया में किया है, अब्रॉड में भी किए हैं, और बहुत सालों तक मैं रियलिस्टिक पेंटिंग ही कर रहा था। डिफरेंट सीरीज़ किया मैंने, लेकिन पिछले 2 साल से मैं एक जियोमेट्रिक एब्स्ट्रैक्शंस में कुछ काम कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल वर्क। उसका एक एग्जीबिशन दिल्ली में हो चुका है और एक दूसरा मुंबई में भी हो चुका है। तो अभी आगे देखते हैं क्या करते हैं। थैंक यू। शेयर मैं ये करना चाहूँगा कि जब हम लोग आर्ट कॉलेज में ज्वाइन किया था, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता, तब उस जमाने की जो एस्टेब्लिश्ड पेंटर हुआ करते थे, नाम लेके बोल सकता हूँ, श्यामल दत्तरे, अमिताभ बनर्जी, फिर गणेश पाइन, ये सब बड़े बड़े आर्टिस्ट हुआ करते थे ये लोग। लेकिन करते क्या थे? एक गणेश पाइनी था जो नौकरी नहीं करते थे, बाकी सारे आर्टिस्ट, एस्टेब्लिश आर्टिस्ट, वो नौकरी करते थे, जॉब करते थे कहीं ना कहीं। और एक जगह था देशप्रिय पार्क, वहां पे एक दुकान था, चाय की दुकान, सुख तृप्ति। तो हम लोग आते जाते देखते थे कि झोला टांग के सिगरेट पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, और हमारा एम्बिशन ये था कि कब हम भी ऐसे सिगरेट और चाय पियेंगे सुतृप्ति में आके। तो दैट वाज आवर एम्बिशन। उसके बाद जब से ये मार्केट बनी, पैसे की बू आया इसमें, तब एम्बिशन चेंज होता गया लोगों का। मुझे अभी तक याद है 1980 की बात होगा। 1980 में विकास भट्टाचार्य जी, उन्होंने एक रेफ्रिजरेटर खरीदे हैं, फ्रीज। तो तब विकास दा का उम्र क्या होगा? 1940 बॉर्न है, 80 में 40 साल का हो चुके थे। 40 साल की आर्टिस्ट एक फ्रीज खरीदा है, वो दैट वाज अ बिग न्यूज इन आवर कॉलेज। स्टाफ रूम में चर्चा चल रहा है, पता है विकास ने फ्रीज खरीदा। बाकी स्टूडेंट्स में भी कह रहे हैं कि भाई, अरे भाई देखो विकास दा को फ्रीज खरीद लिया। तो यहाँ से
यहाँ से हमारा शुरू हुआ, यहाँ से हमारा शुरू हुआ। और पता नहीं कुछ सालों में ये एटीट्यूड इतना चेंज कैसे हो गया, बात करने का ढंग चेंज हो गया, हमेशा अपना ढिंढोरा पीटना जो जिसको कहते हैं वो भी चालू हो गया। एक मजेदार इंसिडेंट था, मेरा एक सीनियर बंदा, वो आनंद बाजार पत्रिका में काम करते थे, तो वो छुट्टी के बाद फुटपाथ से चल के आ रहे थे, मेट्रो सिनेमा के सामने एक आर्टिस्ट के साथ, मतलब वो कंटेम्पररी उनका ही एक जैसे उम्र का होगा, तो उनसे मिले। तो अरे भाई कैसे हो क्या हो के बाद ये बंदा ने बोला देखो अब मिलना जुलना है ही नहीं तो टॉपिक भी है ही नहीं, तो मैं यूं ही एक टॉपिक लाया। ये बोला अरे लग रहा है तुम काफी रिड्यूस किया है। बंदा बोला लग रहा है ना, आईफिल टावर के नीचे जब मैं वॉक करता था तब से थोड़ा रिड्यूस करना शुरू किया। मतलब ये आईफिल टावर घुमा फिरा के उसको दिखा दिया। तो लेकिन ये है क्या, लोग समझते हैं कि जिसको आप बोल रहे हैं ना ऑपोजिट द टेबल जो बैठे हैं वो बुद्धू है, लेकिन बुद्धू है नहीं। अगर बुद्धू होता तो ये मजाक में मेरे को ये नहीं कहते हो। तो ये सब करके जो हम अपना अचीवमेंट को बार बार एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, ये टोटल रॉन्ग प्रोसेस है। मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, अगर 5 लोग ना ही जाने तो क्या नुकसान, क्या है नुकसान तो कुछ भी नहीं है। और मैं जिससे भी मिलूं साथ साथ एक फुल फ्लेजेड कैंपेन अपना चालू कर दूं, जो पहले नहीं था। पहले एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में शो होता था, आर्टिस्ट एक वो आलू का वो चॉप बोलते हैं बांग्ला में, चॉप, आलू चॉप, वो एक आलू चॉप और एक कप चाय यही ऑफर कर पाते थे। यार दोस्त आते थे, गप मारते थे। लेकिन उस दौरान एक आर्टिस्ट की पेंटिंग को लेके क्रिटिसाइज करना या अप्रिशिएट करने में कोई पीछे नहीं हटते थे। आमने सामने ही बोलते थे कि तेरा ये काम अच्छा नहीं लगा, या तो कहते थे कि तेरा ये काम बहुत अच्छा लगा। ये उसमें कोई पर्दा नहीं था, सीधी बात था। वो जो अभी हो गया, कोई किसी का काम के बारे में कुछ बातें नहीं करते, कौन सी गाड़ी खरीदा है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन अभी क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली जो लोग 30 साल पहले जो काम करते थे वो अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि सिक्का जम गया। वो एक ही पैटर्न के काम मार्केट में एक्सेप्टेड हुआ, तो एक आर्टिस्ट को उससे हटना, वो डरते हैं कि पता नहीं आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, तो उसी में ही लगे रहते हैं, इसलिए चर्चा भी नहीं है। क्योंकि 30 साल पहले जो काम देखा 30 साल बाद वही देख रहा हूं, तो चर्चा क्या होगा, नहीं होगा। तो ये सब जो बकवास अभी चल रहा है वो नहीं था। पहले एटमॉस्फेयर अच्छा था, हालांकि स्ट्रगल ज्यादा था। हमारे प्रोफेसर लोग क्या करते थे, वो लोग जो भी सैलरी मिलते थे वो सैलरी से कुछ पैसे अलग करके आर्ट मटेरियल वगैरह खरीदते थे। फिर साल में 2 साल में एक बार एग्जीबिशन करते थे पेंटिंग की, और सारे अनसोल्ड पेंटिंग घर वापस लेके आते थे और बीबी की गालियां खाते थे, क्योंकि स्टोरेज भी तो एक प्रॉब्लम, लाए रखे कहाँ। लेकिन हाँ, हो सकता है कि मेरा कंसेप्ट रॉन्ग है, लेकिन पर्सनली आई फील कि दैट वाज अ बेटर टाइम। एटमॉस्फेयर जो था एक आर्टिस्ट के लिए अच्छा था, अब वो नहीं है। खैर, चलता जाता है ऐसे ही। कॉलेज के टाइम में कैसा माहौल था जब आप स्टडी कर रहे थे? कॉलेज के टाइम पे पैसों की बात तो नहीं होता था, कम से कम। कॉलेज के टाइम पे हम लोग क्या करते थे, जैसे मेरा पर्सनली जो था, मैं मोस्टली वाटर कलर करता था। मतलब कॉलेज वर्क में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, क्लास वर्क में। मैं वो बोर्ड लेके और मटेरियल्स लेके
इधर उधर घूमते थे और वाटर कलर करते थे। तब इंटरेस्टिंगली ये होता था, वो काम जो मैंने बाहर किया वो ले आके टीचर्स को दिखाते थे, उनके कमेंट्स लेते थे, उसके बाद जो सीनियर्स होते थे हमारे उनको भी दिखाते थे, उनकी भी कमेंट्स लेते थे कि भाई कैसा बना, क्या बना, नहीं बना। और बाद में वो सारे पॉइंट्स जो हम इकट्ठा करते थे उसको एनालाइज करते थे कि जो भी इन्होंने बोल गया वो सही बोला है, वो क्या मेरे काम के साथ जचता है कि नहीं जचता है। तो ये एक प्रोसेस था। आपको मैं बता रहा हूँ, टीचर्स भी इतनी डिफरेंट स्टाइल में, स्पेशली जो विकास भट्टाचार्य जी की बात कर रहा हूँ, वो बड़ा हटके पेंटर था। उनकी पर्सनालिटी, उनकी जो शक्ल सूरत सभी अलग था। लंबा सा बंदा, वेरी गुड लुकिंग, बातचीत एकदम स्ट्रेट करते थे, और प्रेशर की पेशेंट थे तो गुस्सा बहुत जल्दी उनका गुस्सा भी आता था। तो जब हम लोग थर्ड ईयर में थे तब विनोद दास थे हमारे प्रोफेसर, इनका नाम शायद बहुत कम लोग सुने होंगे। ट्रिमेंडसली गुड वाटर कलरिस्ट, बहुत अच्छा काम करते थे वाटर कलर में। लेकिन वही उस एक तो ज़माना वैसा था और वो चलबा से बहुत पहले, तो कोई सुना नहीं। तो वो एक दिन लेके आए थे उनका अपना काम हमें दिखाने के लिए, क्लासिक, मतलब ऐसा वाटर कलर जबरदस्त। तो मैं जो वाटर कलर किया था 10-20, वो लेके टीचर को दिखाने के लिए उनके टेबल पे रखा था। और विकास भट्टाचार्य थे 4th ईयर और 5th ईयर में प्रोफेसर थे, वो 3rd ईयर के लिए। अचानक वो क्लास में आए हमारे, किस कारण आए थे पता नहीं। तो मेरे काम के तरफ उनका नजर गया, उठा के देखे, फिर पूछे ये किसका है ये काम। तो मैंने डर के बोला जी मेरा है, संजय भट्टाचार्य है मेरा नाम। अच्छा, उन्होंने कुछ बोला नहीं कि तुमने अच्छा काम किया फालतू का काम किया, कुछ हुआ नहीं, ऐसा कोई कमेंट भी नहीं किया, चले गए। 5-7 मिनट में पूरे 5th ईयर जितने बच्चे थे, जितने क्लासेस, जितने लड़का लड़की थे, सब हमारे क्लास में आ गए और पूछने लगे, अरे ये संजय भट्टाचार्य कौन है? हाँ, विकास दा ऊपर जाके बोल रहा है 3rd ईयर का लड़का का काम देखो जाके। दैट्स द काइंड ऑफ एनकरेजमेंट। वो जो उत्साह देने का जो तरीका उनका था, उससे मेरा जो एनकरेजमेंट का लेवल जितना हाई हुआ, जितना मैं करता था उससे 10 गुना काम करना शुरू कर दिया मैंने। रियली क्योंकि 5th ईयर के लड़के आगे मेरे काम देखने के लिए, और जो विकास भट्टाचार्य ने भेजा उनको, तो वो अलग वो हो गया ना मजा। ऑब्वियसली तो अगर वो सामने बोलते हाँ, तो सामने शायद इतना इम्पैक्ट नहीं होता। उतना इम्पैक्ट है, सामने बोलते बहुत अच्छा काम हुआ, ऐसे तो बहुत लोग बोल देते क्योंकि हैं। जैसे ही सीनियर हाँ। है तो एक पूरा माहौल ही चेंज हो गया होगा, माहौल चेंज हो गया कि ये इम्प्रेशन है मेरे काम का। इतना इंप्रेशन है कि 5th ईयर को जाके बोले कि जाके देखो 3rd ईयर में क्या कर रहा है बंदा बैठ के। तो ये सब चीज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब जो स्टाइल है, अगर हम कोई काम देखें तो बुरा भला कुछ नहीं बोलते हैं, कोई एक्सप्रेशन नहीं देते हैं। जैसे कि एक अच्छा काम जिस लेवल पे मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा काम देखने से जैसे सर झुक जाता है ना, ऑटोमेटिकली वाव निकलता है, ऑटोमेटिकली जी करता है कि आर्टिस्ट के साथ मिलूं, बात करूं कि भाई आपने तो गजब का काम किया। लेकिन ये सब नहीं है। अब जो स्टाइल है इग्नोर करना। जब मैं किसी को देखूंगा कि मेरे से भी अच्छा काम कर रहा है, तब मैं स्टाइल अपनाऊंगा ऐसा ताकि वो इग्नोर कर पाऊं। और कई लोग अगर पूछे भी तो ऐसे कह दूंगा नहीं, खास नहीं है, ठीक, इतना नहीं है कुछ। क्यों? कुर्सी खिसकने का डर। पावरफुल जो पेंटर होता है ना, उसे कुर्सी खिसकने का डर नहीं होता है। जो जानता है क्या होगा, कुछ लॉस होगा, कुछ प्रॉफिट होगा, लेकिन मेरा काम तो मेरे हाथ में ही है ना, कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन जब आप 4 आर्टिस्ट को असिस्टेंट बिठाओगे स्टूडियो में,
फैक्ट्री। और फैक्ट्री लगा के आप भागा दौड़ी करते रहोगे कॉन्टैक्ट्स के पीछे, और शाम को साइन करके कहते होगे कि ये मेरा पेंटिंग है, तब उनको खिसकने का डर तो होगा जरूर। इसीलिए ये एप्रिसिएशन जो है करते नहीं, वो नहीं करते, जान के नहीं करते। तो है, बहुत कुछ है, चल रहा है, आई एम एंजॉयिंग इट। ठीक है, मेरा भी कोई वो नहीं है, अच्छा लगता है, मजा आता है। क्योंकि जब घटिया सा काम करके कोई कहते हैं कि आई हैव मेड वर्ल्ड्स बिगेस्ट पेंटिंग तो मजा आता है। वो रिकॉर्ड बनाने का तो कुछ अलग ही बीमारी है लोगों के साथ। लेकिन ये देख नहीं पाते कि हमसे पहले जो लोग आए थे वो लोग हमसे कितना अच्छा काम करके गए। एक बार अगर नजर उठा के वो काम देखे ना तो ऑटोमेटिकली लेवल पे आ जाता है लोग। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अपना छोड़ के किसी काम देखते ही नहीं, अपना ही देखता है। तो जो कभी कभी लोग आते हैं मेरे पास भी, आके कहते हैं कि हाँ यू आर वेरी लकी, यू आर पेंटर्स, यू बिलोंग टू ए डिफरेंट वर्ल्ड, ये वो। हंसी आता है मेरे को, क्योंकि ऐसा है नहीं। और सच में तो मैं कहूँ कि जो पेंटिंग करना, जो हम करते हैं पेंटिंग, वो एक टेक्निकल चीज़ है। 10 साल अगर कोई लगा दे इसमें तो 19-20 वो भी कर लेगा। लेकिन आर्टिस्ट जिसको कहते हैं वो बनना पॉसिबल नहीं है अगर आपकी इनसाइड में वो वैल्यूज नहीं है। वो एग्जाम्पल मैं सबको देता हूं रामकिंकर वेज का। रामकिंकर वेज 2 रुपये 54 मांगते थे स्टूडेंट्स से दारू पीने के लिए। जब उनका डेथ हो गया, उनकी बेड के नीचे से 40,000, 50,000, 60,000 की चेक्स मिला जो डिपॉजिट ही किया नहीं उन्होंने। चेक आया, बेड वाला बैंक में डिपॉजिट कर दिया। आप मेरे को बताओ कितने आर्टिस्ट ऐसे मिलेंगे? मैं तो नहीं हूं वैसा, मैं तो चेक दौड़ के बैंक में जमा करूंगा। लेकिन है कोई और आर्टिस्ट जो 40,000 का चेक बेड के नीचे छुपा रहा है और 54 मांग रहा है किसी से? आज वो स्पीसीज ये नहीं है। रियल आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट की जो तकमा हम लगा देते हैं ना, ये आर्टिस्ट नहीं है, वो एक एटीट्यूड होता है। पेंटिंग करना वो वाली बात आर्टिस्ट का नहीं। पेंटिंग कोई भी कर सकता है अगर मेहनत करे तो टेक्निकल चीज के ऐसे रंग लगाओ, वैसे ये करो, वैसे करो, ड्राइंग सीख जाते हैं। लेकिन वो क्वालिटी जो आर्टिस्ट की रियल क्वालिटी है, जो एल्यूफनेस की एक्सट्रीम, 40,000 50,000 का चेक मिल रहा है जो उसने बैंक में जमा किया ही नहीं, तो सोचने की बाहर है, ये इम्पॉसिबल। से है आर्टिस्ट बहुत कम है। इतना दूर तक पहुंचना, इतना खुद को सब चीज़ों से हटा के रखना, बाहर रखना, और सिर्फ अपने काम जो है उसकी तरक्की की बारे में सोचना, वो ज़रूरत अब तो और भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला ना, कोई भी एक काम अगर आपको चल जाए, जैसे कोई प्रोडक्ट हॉर्लिक्स मार्केट में चल गया तो टेंशन नहीं, आप हॉर्लिक्स बनाते जाओ और बेचते फ्लेवर जाओ, चेंज कर देना उसमें, बेचते जाओ। तो ये अभी आर्ट वैसा ही हो गया कि कोई भी एक प्रोडक्ट मार्केट में चल गया तो छपते जाओ। और ये भी मेरे को समझ में नहीं आते कि अगर 4 आर्टिस्ट मेरा काम कर रहा है और मैं उसमें सिग्नेचर मार के एस्टेब्लिश कर रहा हूँ कि मेरा काम है, ये तो पहले जमाने में था ही नहीं। कोई आर्टिस्ट तो सोचा ही नहीं कि कोई और आके उसके कैनवस में रंग लगाएगा। हालांकि ठीक है, स्टूडियो वर्क होता था, रेम्ब्रांड के स्टूडियो, ऐसा नाइट वॉच बन रहा है, इतना बड़ा पेंटिंग, तब कहीं कहीं पे लोग फिलर विलर कर रहे हैं, वो मान सकता हूं। लेकिन ये 3 फीट बाई 2 फीट का काम हो रहा है, वो भी असिस्टेंट ही बना रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है
कि लोगों को पता भी है कौन किसका असिस्टेंट, पता है लोगों को। तमाशा नहीं है, टोटल जोक। चलो बोल के फायदा नहीं, ना ही मैं चेंज कर सकता हूँ ये चीज। नहीं दादा, चेंज तो नहीं कर सकते हैं ले, और ठीक है चेंज करने के हाँ, लिए लेकिन नहीं। एक चीज करता हूँ, मैं शामिल नहीं हो सकता। हाँ, तो ये बहुत बड़ा चेंज है कि somebody somewhere should realize कि बस मैं उस लाइन में नहीं हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरा जो इनर फीलिंग है या जो चीज़ें मुझे मेरे लाइफ को, मेरे काम को मुझे ड्राइव पसंद नहीं करती है, है, मैं उसके साथ जाऊँ। उससे हट के रहने का। मेरे को किसी ने, एक कोई ऐसे यूट्यूबर कोई आए थे, आशीष नाम का, यहाँ पे स्टूडियो में, तो वो कहने लगे कि दादा आपको हम लोग रियलिस्टिक पेंटर हो, आप ऐसे ही जानते हैं सालों से, अभी आप एक ज्योमेट्रिक एब्स्ट्रैक्शन शुरू कर दिया पेंटिंग में, आप पोइट्री लिखना शुरू कर दिया, आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, हालांकि गाना भी गा रहे हैं, ये क्या है ये पागलपन। मैंने उसे ये बोला, देखो भाई 65 साल का मैं हो चुका हूं, मेरे हाथ में ज्यादा से ज्यादा 10 साल है। 75 ईयर्स के बाद अगर मैं जी भी जाऊं तो मैं 10 फीट बाय 5 फीट का कैनवस करने लायक नहीं रहूंगा। और ये जो धूप में, छांव में, बारिश में मैं फोटो खींचता हूँ रास्ते में घूम घूम के, वो भी मेरे बस की नहीं रहेगा। तो रह जाएगा सिर्फ कविताएं लिखना घर बैठ के कविताएं लिख। तो ये 10 साल में जो मुझे करना मन कर रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है करना, वो हर एक चीज मैं करूंगा, क्योंकि टाइम इज वेरी लेस। इतने साल तो बीत गए, एस्टेब्लिश होना, फैमिली को देखभाल करना, सब कुछ करना, अब वो टाइम बीत चुका है। अभी भी अगर मैं सोच सोच के काम करूं कि ये करने से मार्केट में ये इफेक्ट होगा, वो नहीं करना चाहिए, इससे मेरा इमेज खराब हो रहा है, नहीं, अब वो सब नहीं सोचने का, वो टाइम चला गया। अब जो मनमानी करता रहूंगा मैं, और वही हो रहा है। मार्केट को भी, सोसाइटी को भी एक आदत है एक ब्रांड का, एक चीज़ों को एक प्रोडक्ट इमेज के जैसा देखने का, कि आप तो ये नहीं करते थे, अभी आप ये करने लगे। अरे मैंने जब फोटोग्राफी शो किया, 2-4 क्लाइंट मेरे को पूछे, ओह यू हैव स्टॉप पेंटिंग, नाउ लुक एट देम। उनको इतना भी नहीं है, सिर्फ उनको नहीं, एक बहुत मशहूर फोटोग्राफर ने भी बोला कि संजय इज अ पेंटर, व्हाई इज डूइंग फोटोग्राफी। बड़ा क्वेश्चन, क्या पूछा उन्होंने। तो बाद में किसी ने, मेरे जिसके जरिए बात हो रहा था, उसने बोला, अच्छा एक बात बताओ, अगर वो फोटोग्राफर एक वाटर कलर करे, हाउ विल टेक इट। आई सेड आई विल टेक इट वेरी इजीली, इफ इट इज अ गुड वर्क आई विल अप्रिशिएट, आई विल से डेफिनेटली हैव डन अ गुड जॉब। I won't say that, oh, why you are a photographer, why you are doing watercolors. There is no barrier as such कि ये कर सकते हैं, तो नहीं, ये सेगमेंट में थोड़ी है, अपनी मर्जी है लोगों को। तो ये प्रॉब्लम तो है। ठीक है दादा। थैंक यू।